हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। जो इंटरेक्टिव क्लासेस हैं आप लोग उसके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको लिंक भेजा जाता है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए, अटेंड करिए। इट्स नॉट मैटर ऑफ अ फीस, इट्स नॉट मैटर ऑफ एनी अदर थिंग्स, इट्स अ जस्ट मैटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हाल फिलहाल जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये कोरोना चल रहा है। ठीक है, आप प्रॉपर स्कूल्स नहीं जा पा रहे, आप प्रॉपर अपने ट्यूशन सेंटर्स नहीं जा पा रहे, आप अपने ट्यूशन टीचर्स को भी नहीं प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे। एंड मोस्ट ऑफ एजुकेशन जिस टाइम पे चल रही है, इट इज़ बेस्ड अपॉन like online. That is the most of teachers send you PDF, or some of teachers send you videos directly from YouTube links. So we are just trying to give you something better, something extra, and something best quality of education. Okay, so just connect with us. And आपको इस बारे में और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आपकी स्टडी हो रही है, आपको गेन हो रहा है, आपको क्वालिटी चीज़ गेन हो रही है। देन आफ्टर सम क्लासेस, सम डेज, यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, ठीक है, आप जस्ट ग्रुप में प्रेजेंट हो बट आप रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे रहे हो, तो इससे तो आपकी स्टडी पे फर्क पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, आप लोगों को याद होगा इस मैटर अराउंड अस प्योर हम ये स्टडी कर रहे थे, और इसमें आपने एक सोल्यूशन का पोर्शन जस्ट अभी शुरू किया हुआ था। जैसे हमने बताया हुआ आपको, सोल्यूशन इज व्हाट, इट्स अ homogeneous mixture. We studied already, discussed already about this. It's a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. ठीक है, that is, it's a mixture of solute and solvent, and then we get a solution. Generally, solute is the component which is present in lesser amount. Solvent is the component which is present in a greater amount. ठीक है, and finally we get a solution. Most of solutions which we have to study are binary solutions. हमें ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने होते हैं, जैसे NaCl in water, sugar in water, CO2 in water, etc. These are some binary solutions, that is the solutions having two components. ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स जब मिक्सअप हो जाए तो होमोजेनियस होना चाहिए, केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स देयर इज नो रिएक्शन, एज वेल एज साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट सेम। सोल्यूट पार्टिकल की साइज और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज लगभग सेम होगी, and it is order of 10⁻⁻10 meter, that is 1 nanometer range of diameter। इन पार्टिकल की साइज लगभग इस रेंज की होगी, and this is the very small size, cannot detect easily even by microscope. So solution shows a homogeneous mixture. This size of particle cannot scatter to the lights, there is no dispersion. All these are the characteristics of solutions we already discussed. Okay, so the next part of this topic is concentration of solutions. Concentration of solutions. If we talk about concentration of solutions, concentration means amount of solute present in the solution. Amount of solute present in the solution, it's a concentration of solution. हमने देखना सोल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में। सपोज
मान लीजिए अपने पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है and this solution is prepared by adding 20 gram sugar in 500 ml water. ठीक है, so we can say concentration of this solution is 20 by 500 gram per ml. 20 by 500 gram per ml, or it's a 40 gram per liter. So this is called concentration. Concentration of solution means amount of the solute present in the solution. What amount of solute is present? Concentration may be expressed in number of ways. It may be as pph. pph means concentration as parts per 100. So the pph, parts per 100, it is also known as percentage. If you express in terms of percentage, it's a pph. किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, मतलब हमें सोल्यूट की अमाउंट को फाइंड करना है उसमें. When solute is added to the solvent and we get a solution, then percentage sometimes we expressed as mass percentage. Mass percentage means beta we have to write mass of solute and mass of solution into 100. मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास लेना है. दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए इट इज अ मास परसेंटेज. मे बी इट इज एक्सप्रेस्ड इन मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज. बट ये डिपेंड करता है कि डेटा आपको क्या गिवन है. अगर आपको किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, तो मास परसेंटेज फाइंड कर लीजिए. मास ऑफ सोल्यूट रख करके, दोनों का सम रख करके 100 मल्टीप्लाई कर दो. मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस. इसमें सॉलिड का मास दिया होता है, लिक्विड का वॉल्यूम गिवन होता है जनरली. सो मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज रिटन एज mass of solute and divide by volume of solution into 100. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, we get mass over volume percentage. डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें दिया क्या है. हो सकता है हमें सोल्यूट का मास दिया, सोल्यूशन का मास. सो किसी भी तरीका से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और हो सकता है जैसे कि लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं. Liquid to liquid solutions means solute is liquid, solvent is also liquid. जैसे आप अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हो, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है और दोनों ही लिक्विड्स हैं. इस केस में मोस्टली वी प्रेफर टू फाइंड आउट वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स वी हैव टू राइट वॉल्यूम ऑफ solute डिवाइड बाय volume of solution into 100. But this type of unit of concentration generally used in liquid to liquid type solutions, because solute भी liquid है, solvent भी liquid. So these are some methods in which we can find out the concentration in terms of percentage. Okay, इस पे बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो. मैं आपको इसकी एक और यूनिट बताता हूँ जो मोस्टली यूज होती है. That is strength of the solution. ये भी एक concentration है solution की, and it is find out as mass of solute but volume of solvent. बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको. सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट का कितना मास है, this value
is also known as weight over volume concentration. This is the strength of solution. लेकिन बेटा जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन है ये जनरली हम उन सॉल्यूशंस के लिए फाइंड आउट करते हैं जो सॉल्यूशंस कंसिडरेबल कंसंट्रेशंस के होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट में है. बट इफ वी हैव वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास कोई बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मतलब सोल्यूट बहुत कम है, बहुत रेयर है, निग्लिजिबल है, वी प्रेफर्ड पीपीएम. पीपीएम टाइप यूनिट्स, इट मींस पार्ट्स पर मिलियन. फाइंड आउट करने का तरीका वही है, राइट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अब आप परसेंटेज की जगह मिलियन ले लो, 10⁶ पार्ट्स. इट इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस लाइक कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर, कुछ इस टाइप से. सो बेटा जब कभी भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस की बात करेंगे तो हमने फाइंड आउट करनी है सोल्यूट की अमाउंट इन द solution, either is mass percentage, mass over volume percentage. ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस. अब देखिए जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्टेजेस आती हैं और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आएंगी. जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय saturated solution, unsaturated solutions and supersaturated solutions. ये 3 टर्म्स हैं. कोई पूछे ये क्या है, तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं ये जो कुछ लिखा है, these are the stages of a solution. ये किसी सॉल्यूशन को बनाते वक्त स्टेजेस हैं जो आती हैं. एक्चुअली जब हम किसी गिवन सॉल्वेंट में, जैसे गिवन सॉल्वेंट है, इसके एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में, गिवन अमाउंट में, किसी गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब हम इसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, टेक अ वाटर लाइक दिस, दिस इज द सॉल्वेंट. व्हेन यू ऐड सम सॉल्ट इन इट, आपने ऐड कर दिया और स्टेयर कर दिया, आपने देखा घुल गया. आपने फिर और सॉल्ट ऐड करा, फिर स्टेयर करा, फिर घुल गया, और ऐड करा. ठीक है, अभी जब तक आप इसमें सॉल्ट ऐड करते जा रहे हो और डिजॉल्व होता जा रहा है, तब तक तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर का, इट इज अनसैचुरेटेड. इसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब मैं इसमें सोल्यूट डालूंगा, ये घुलेगा नहीं, एज इट इज रह जाएगा. मतलब जब सोल्यूट घुलना बंद हो जाए तो इसे कहेंगे सैचुरेटेड. और अगर आपने उसके बाद ऐड करना है, करो, आपको किसने रोका है, बट दैट सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट एट द बॉटम. नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ सुपर सैचुरेशन. होपफुली you will understand. So जब तक solute ऐड हो रहा है, that means the 3 stages, before saturation it is unsaturated, after saturation it becomes supersaturated solution. So अगर मैं इसको simply एक एक लाइन में explain करूं, saturated solution is the solution or is the stage of solution at which no more solute can be dissolved.
एक ऐसी स्टेज जब सोल्यूट में कोई और सॉल्वेंट में कोई और सोल्यूट ऐड ना कर पाए, दैट इज देयर इज द सैचुरेशन और इक्विलिब्रियम बिटवीन सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। एक ऐसी स्टेज आ गई, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, जिसमें हम कह सकते हैं जो घुलने का प्रोसेस था, दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to, डिसोल्यूशन डिसॉल्व होना, becomes equal to rate of crystallization। मतलब घुलने का जो प्रोसेस है और डिसोसिएट होने का प्रोसेस है, उन दोनों का रेट सेम हो जाए, देन इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द स्टेट एट विच more solute is required to make a saturated solution। हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर और सोल्यूट चाहिए तो समझ लीजिए सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, एंड दिस इज द स्टेज, दिस इज द स्टेट ऑफ precipitation। That means at this stage solute cannot be dissolved, it will be precipitate at the bottom। These are three stages: saturated, unsaturated and supersaturated। On the basis of these simple definitions, there is a definition of solubility। There is defined a term, solubility of solution। How can you define solubility? ठीक है, वैसे तो बेटा इसकी डेफिनेशन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, जैसे सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू लिक्विड है, या गैस टू लिक्विड है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग है, बट इन जनरल इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that dissolved in the given amount of solvent, sometime it is taken as 100 gram, to make a saturated solution, to make a saturated solution at given temperature pressure। किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट डालना पड़े, दैट मीन्स इन द सिंपल वे इट्स अ कंसंट्रेशन, बहुत सिंपलेस्ट वे में लिखा रहा हूं, इट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। हालांकि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको वेरी करके सॉल्युबिलिटी की अमाउंट भी अफेक्ट की जा सकती है। ठीक है, सो होपफुली कि आपने कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड रीड द रिलेटेड पेजेस। ठीक है, एंड वट एवर डाउट्स आपको लगे कुछ भी, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन फोन मी, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, और वेट करो लाइव इंटरेक्शन क्लास की, उसमें लिंक आता है ग्रुप में, आप उस लिंक को फॉलो करो और लाइव क्लासेस में फेस टू फेस डाउट पूछो, डिस्कशन करो, क्वेरीज डिस्कस करो, टॉपिक डिस्कस करो, न्यूमेरिकल डिस्कस करो। इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैं सेंड कर रहा हूँ, आप उनको देखना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।